Okay, so I was asking that where object may float and object may sink. That all depends on the density and buoyancy. Who will tell me कि density कैसे डिसाइड करता है ये? Raise your hand. Sir, please say loudly. My voice is very less. Yes, sir. No, sir. Good. Okay, tell me the answer. How density determines that which object will float and which object will sink. Who will tell me the answer? Sanskriti Anand. So can I? So this density is dependent on the volume and its mass of the object. So अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग पानी में रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर पानी से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा? No, sir, it will sink. No, sir, it will sink. It will sink. And if the object's density is less than water, then it will sink. No, sir. No, sir. It will float. No, sir, it will float. Okay. And what about buoyancy? If the force of gravity is greater than the buoyancy force, then that object will float. If the object's gravity is more than the buoyancy, then that object will float or sink. So that force of gravity experienced by the object will float. If the force of gravity is more than the buoyancy force, then that body will sink. And if the buoyancy force is greater than the force of gravity of that object, then that body will float. ठीक है? Okay, next ये एक्टिविटी करना था. Yes, sir. कितने लोगों ने किया है? चलो तब बताओ कि which of these float and which sink. इसमें से कौन कौन सा फ्लोट किया और कौन कौन सा सिंक हो गया? Sir, a bottle cap will float. सिंक कौन कौन करेगा इसमें? Sir, moon gram. Sir, moon and Sir, seeds. button, monogram, ये दोनों डूब गया था Pen. और बटन भी. बटन भी ना, ये सब सिंक हो गए Yes, थे. sir, button. ये सब सिंक हो गए थे. क्यों सिंक हो गए थे? क्योंकि ये सब हेवियर देन वाटर, ये लोग वाटर से ज़्यादा वजन के थे, यही ना? yes sir. Okay, next today we will study about the transparency. So transparency is the property of matter. Materials through which light passes completely are called transparent. तो जिस मटेरियल से लाइट पास हो जाएगा completely उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट. Transparent. वी कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल के आर पार देख सकते हैं, जैसे क्लियर ग्लास, एयर, क्लीन वाटर और सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. कुछ प्लास्टिक से भी हम लोग आसपास देख पाते हैं, आर पार देख पाते हैं. आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ओके, हु विल डिफाइन ट्रांसपेरेंट मटेरियल हियर? Sir, may I? ओके, Sir, दृष्टि. may I? डू नॉट अनम्यूट द कॉल. कॉल अनम्यूट नहीं करना है. दृष्टि बोलो. Material through which light passes completely are called transparent materials. We can see through a transparent material. For example, clear glass, air, clean water, and transparent sheet. यस, वेरी गुड. आयुषी प्रज्ञा, Yes sir. define what is transparent. Transparent is a property of matter. Materials through which light passes completely are called transparent. Okay, we can see through transparent material. Yes sir. Clear glass, air, certain types of plastic and clean water are transparent material.
Yes, sir. Very good. So why don't you say that? Next, Drishti Raj. Drishti Raj. Yes, sir. अच्छा, you have defined it, na? So Yes, sir. yes. So materials that allow light to pass through is called transparent. अब हम लोग ऑपेक पढ़ेंगे. Any material through which light does not pass, ऐसे मटेरियल जिससे लाइट पास नहीं होंगे वो ऑपेक कहलाएंगे. जैसे कि हमारा बुक के इस तरफ से लाइट जलाओ उस तरफ पार हो जाएगा? No, sir. नहीं. वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑपेक मटेरियल. और ऑपेक मटेरियल से हम लोग कुछ देख भी नहीं सकते. बुक को अगर आइज़ के सामने रख देंगे तो उस तरफ दिखेगा क्या कुछ? No, sir. नहीं. तो एग्जांपल में वुड, ऑल काइंड ऑफ मेटल्स Card paper. एंड कार्ड पेपर आर ऑपेक मटेरियल, है ना. ग्लास कैन बी मेड ऑपेक. तो ग्लास को हम लोग ऑपेक बना सकते हैं बाय पेंटिंग इट सरफेस, उसके सरफेस को पेंट करके, है ना. Yes, sir. ओके. Yes, sir. संस्कृति आनंद डिफाइन ऑपेक ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑपेक? So about opaque. यस संस्कृति. Any material through which light does not pass is called opaque. We cannot see through an opaque material. Wood, all kinds of metal, and card papers are opaque materials. Glass can be made opaque by painting its surface. Yes, glass can also be made opaque by painting its surface. Ayusaman, Yes, sir. define opaque. Material through which light does not pass is called opaque. Not see through an opaque material. Example: wood, all kinds of metal, card, paper are opaque materials. Glass can be made opaque by painting its surface. Yes. So हमें ट्रांसपेरेंट के बारे में पता चला कि वैसे मटेरियल्स जो लाइट को पास होने देंगे, कम्प्लीटली लाइट को पास होने देंगे, वो ट्रांसपेरेंट होगा. ऑपेक के बारे में हमें पता चला वैसे मटेरियल जो बिल्कुल ही लाइट को पास नहीं होने देंगे उसे ऑपेक बोलेंगे. सो मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. तो कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो लाइट को पास होने पूरा तो नहीं देते बट थोड़ा बहुत लाइट को पास होने देते हैं, जिसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं. जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास हमारे विंडोज़ में लगे होते हैं. सर्टेन प्लास्टिक्स एंड सम ऑयल्स आर ट्रांसलूसेंट. ठीक है. हु विल डिफाइन ट्रांसलूसेंट हियर? गीतांजलि, Yes, sir. डिफाइन ट्रांसलूसेंट. Materials that allow light to pass through particularly are called translucent. For example, forest glasses, certain plastics, and some oils are translucent. यस. प्रतिभा प्रधान. Yes, sir. Material that allow light to pass through practically are called translucent. Are example for said glass, certain plastics, and some oils are translucent. ओके चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू पार्शियली मतलब आधा, मतलब पूरा भी नहीं, थोड़ा बहुत लाइट को पास होने देते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट. फ्रॉस्टेड ग्लास कहते हैं जो पूरा आर पार दिखता नहीं है, हमें विंडोज़ वगैरह में होते हैं, है ना. नेक्स्ट आलोक राज, Yes, sir. डिफाइन ट्रांसलूसेंट. Material that allow to light pass through particularly are called translucent. So may I? यस. दृष्टि.
Materials that allow light to pass through partially are called translucent. 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 Frosted glass, certain plastic, and oiled paper are translucent. एंड सम ऑयल्स आर ट्रांसलूसेंट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में दिख भी रहा है हमें कि ट्रांसपेरेंट में क्या है कि लाइट पासेस कम्प्लीटली थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे लाइट जो है कम्प्लीटली पास हो जा रहा है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से. सेकंड में हमें दिख रहा है लाइट डज नॉट पास थ्रू एन ऑपेक ऑब्जेक्ट. ये एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है और लाइट इससे पास नहीं हो रहा है और शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, शैडो ऑपेक ऑब्जेक्ट का ही बनता है. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ ट्रांसलूसेंट में लाइट पासेस पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत लाइट पास हो रहा है थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो द ट्रांसपेरेंट ऑपेक एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल हैव डेफिनेट यूज़. सभी का अलग अलग यूज़ है कि नहीं. कैन द इंटायर हाउस बी मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. क्या पूरा घर हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना सकते हैं. No, sir. और अ कार इंटायरली ऑफ ऑपेक मटेरियल. या फिर हम कार बना सकते हैं सिर्फ ऑपेक मटेरियल ही लगा करके. No, sir. No, sir. No, sir. ऑपेक रहेगा तो दिखेगा ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, धक्का ही लगते रहेगा. नहीं. Yes, sir. अच्छा, बाहर कैमरा भी तो लगा सकते हैं सर, है ना. कार में बाहर कैमरा लगा के अंदर में देख करके चला सकते हैं. नहीं. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इफ ऑपेक ग्लास Right. व्हाट इफ ऑपेक ग्लास इज यूज इंस्टीड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑन अ wrist वॉच. हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास की जगह पे अगर हम लोग ऑपेक ग्लास लगा देंगे तो क्या होगा. So we will not able to see the time. यस, वी विल नॉट एबल टू सी दी टाइम. क्योंकि लाइट तो पास होगा ही नहीं, हमें दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं. Yes, sir. ओके, सो आज हमने ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ा. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, सबको ये पता है. अब नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट. सो टू कंडक्ट मीन्स टू ट्रांसफ़र. सम मैटर्स हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र हीट. कुछ मैटर में ये एबिलिटी होता है कि वो हीट को ट्रांसफ़र कर सके. सच एज मैटर इज़ कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो वैसे मैटर जो हीट को ट्रांसफ़र कर पाएंगे उसे क्या बोलेंगे. Good conductors of heat. Good गुड conductor of कंडक्टर ऑफ heat. हीट. Conductor of सो heat. मोस्ट मेटल जैसे कि कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये सभी अच्छे कंडक्टर हैं हीट के. ऑन द अदर हैंड Yes, sir. wood So, and plastic gold are poor will conductor melt. of heat. They do not allow heat transfer to occur through them. Yes? Who is asking? but gold will melt. Okay, it depends, but it will transfer heat ना. मेटल है तो ये ट्रांसफ़र तो करेगा ना हीट. गुड कंडक्टर तो है ना. ठीक है, हो सकता है मेल्ट हो जाए. और क्यों मेल्ट होगा मुझे नहीं लगता. ज़्यादा हीट देने पे तो कुछ भी मेल्ट कर जाएगा, आयरन भी मेल्ट हो जाएगा, है ना. लेकिन ये सभी मेटल्स हैं और जितने भी मेटल्स होते हैं सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, है ना, दे डू नॉट अलाउ हीट ट्रांसफ़र टू अकर थ्रू देम. तो चलो अब कौन बताओगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. राइज योर हैंड. यस, प्रतिभा प्रधान. Some matter has the ability to transfer heat. Such are matter is called good conductor of heat. Example: copper, iron, silver, gold, and aluminum are good conductor of heat. वेरी गुड. नैतिक कुमार, Yes, sir. व्हाट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Such as a metal is good conductor of heat. Most metal, copper, iron, silver, gold, and aluminium are good conductor of heat. Very good. So some matter has the ability to transfer heat.
such matter is called good conductor of heat. तो वैसे मैटर जिसमें एबिलिटी है हीट को ट्रांसफ़र करने की, वैसे मैटर को गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, है ना? Yes, आनंद, sir. आनंद कुमार. Yes, sir. Yes, Anand. You tell me about the poor conductor of heat. Yes, sir. Some matter has the ability to transfer heat. Such a matter is called good conductor of heat. Most metal, copper, iron, silver, gold, and aluminium. ठीक है, ये तो हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट का ना. Yes. ओके, म्यूट टू कॉल नाउ. Sir, may ओके, I? आयुष अमन. Sir, can I? नो, डू नॉट अनम्यूट टू कॉल. आप लोग अनम्यूट करके पूछो मत. आयुष अमन बोलो. The poor conductor of हाँ, heat. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. Wood and plastic are poor conductor of heat because they not allow heat to transfer to occur through them. Yes, wood and plastic are poor conductor of heat because they do not allow heat transfer to occur through them. तो ये अब जो भी मटेरियल चाहे वुड हो चाहे प्लास्टिक हो, जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र होने से रोकेंगे और अलाउ नहीं करेंगे हीट को ट्रांसफ़र होने में, वैसे मटेरियल को क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. Poor conductors of heat. वैसे घर में जब चाय बनता है तो चाय बनाने वाला बर्तन देखे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर वो पूरा एल्युमिनियम का है, पूरा एल्युमिनियम का है तो वो गर्म हो जाता होगा ना पकड़ने में, फिर कपड़ा से पकड़ना पड़ता Yes, होगा. sir. Yes, sir. अभी तो बहुत सारा आ गया, उसमें प्लास्टिक का लगा रहता है हाथ हैंड के पास जब जहाँ पकड़ते हैं. Yes, sir. Yes, sir. क्यों प्लास्टिक का लगा रहता है? क्योंकि हाथ जा रहे ना. ताकि हाथ जले ना. क्योंकि प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. And they do not allow heat transfer through it. हाँ, वो अलाउ नहीं करता है हीट ट्रांसफ़र का, इस वजह से हमारा हाथ नहीं जलता है ना? नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो सम मैटर हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली. कुछ मैटर ऐसे हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छे से ट्रांसफ़र होने देते हैं. सच अ मैटर इज़ कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो वैसे मैटर जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र होने में हेल्प करते हैं, वैसे मैटर को क्या बोलेंगे? Good conductor of Good electricity. conductor of electricity. So most Good metal, conductor of heat. Good Yes. conductor of electricity. yes, most metals are good conductor of electricity. ज़्यादातर मोस्टली जो मैटर्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना? ड्राई वुड एंड प्लास्टिक, सूखा हुआ लकड़ी और प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? चलो पहले पूछ लेते हैं व्हाट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज फ्रॉम. So, can you give me some example of good conductor of electricity? Yes, metal. Mostly metals are good conductor of electricity. All metals are good conductor of electricity. So, Even we copper are is also also good good conductor of conductor of electricity. We are also good conductor of electricity. If we touch the electricity, then electricity will start to flow with our body. Okay, Sanskriti Anand, you tell me about good conductor of electricity. Some matters has the ability to transfer electricity efficiently. Such a matter is called good conductor of electricity. Most metals are good conductor of electricity, Okay, such as copper and etc. Dry wood and plastics are example of matter that do not conduct electricity. so they are called bad conductor of electricity. Okay, Ayushi Pragya, Yes, sir. what is good conductor of electricity? The matter has ability to transfer electricity efficiently. Such a matter is called a good conductor of electricity. Most metals are good conductors of electricity. Yes.
और वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन बताओगे? राइज योर हैंड। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, दृष्टि, प्रतिभा और आयुष। तो ये प्रतिभा प्रधान। Wood and plastic are bad conductor of electricity Yes, wood and plastic are bad conductor of electricity. Why they are bad conductor of electricity? because they are not ability to transfer electricity. Yes, because they don't have ability to transfer electricity efficiently. Or you say that they do not conduct electricity, they do not allow electricity to pass through them, है ना? बहुत अच्छे, very good. Next has soluble and insoluble material. So salt is soluble in water. Have you seen that? कभी देखो salt को पानी में घोले और salt गायब. Yes, sir. So salt is soluble in water. Whereas sand is not soluble in water. Sand को पानी में घोलो, घुलेगा? No, sir. No, sir. Substances such as salt and sugar that are soluble in water are called soluble substance. तो ये definition हो गया. तो वैसे substance जो substances such as salt and sugar that are कौन कौन सा salt and sugar that are soluble in water are called soluble substance. Soluble substance. आए है ना? Substances such as, और दूसरा definition, substances such as sand and sawdust did not mix with water even on steering. इसको मिला लो कितना भी नहीं, स्टीयरिंग मतलब जैसे चम्मच डाल के नहीं घुमाते हैं, ये इनसॉल्युबल ही रहेगा. सो व्हेन अ मटेरियल डिज़ोल्व इन लिक्विड इट फॉर्म सॉल्यूशन. और जब कोई मटेरियल लिक्विड में डिज़ोल्व करेगा तो वो सॉल्यूशन बनता है. सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स अ सॉल्ट सॉल्यूशन. जैसे हम लोग सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में और सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, वैसे ही. चलो अब पूछते हैं व्हाट इज़ सॉल्युबल सब्सटेंस, व्हाट इज़ इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड व्हाट इज़ सॉल्यूशन. ये सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, देखते हैं किसके किसके पास आंसर है. गीतांजलि कुमारी, Yes, sir. व्हाट इज़ सॉल्युबल सब्सटेंस? Salt is soluble in water, whereas sand is not soluble in water. Substances such as salt and sugar that are soluble in water are called soluble substances. Very good. Can I? Yes. Substances that dissolve or soluble in water are called soluble substances. Example: salt and sugar. And what is insoluble substance? Substances that are not soluble in water are So, called insoluble substances. Example: sand and sawdust. Okay. And what is solution? When a material dissolves in liquid, it forms a solution. Salt dissolves in water and forms a salt solution. And what will happen if we dissolve sugar in water? Then what type of solution will be formed? जब सॉल्ट मिला रहे हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है, शुगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? sugar solution. सो insoluble substances जैसे सैंड एंड सॉडस्ट मिलाएंगे पानी में, ये मिक्स नहीं होंगे पानी में, insoluble रह जाएंगे. Yes, sir. सॉडस्ट क्या होता है? बुरादा. बुरादा क्या होता है? Sir, glitter. दिखाता हूँ, ये है.
ये रहा। अच्छा, बुरादा मतलब लकड़ियों का जो वो रहता है, टुकड़ी टुकड़ी छोटे छोटे, है ना? Yes, sir. तो ये तो पानी में नहीं घुलेंगे, घुलेंगे क्या? No, sir. और सैंड तो वैसे भी नहीं Made up घुलता। of wood. सैंड घुलता है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. चलो, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये कि सेवरल सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। आज हमने पढ़ा हार्डनेस तो पढ़ ही लिए थे, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। और ट्रांसपेरेंसी के बारे में आज हम लोग पढ़ें, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट के बारे में। कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल के बारे में पढ़ें। आपको होमवर्क रहेगा ये आपको डायग्राम बनाने हैं और बस लिखना है और कुछ नहीं। ये डायग्राम, ट्रांसपेरेंट वाला डायग्राम, ओपेक वाला डायग्राम और ट्रांसलूसेंट वाला डायग्राम इन होमवर्क कॉपी। बस ये डायग्राम बना देना है और उसके सामने लिख देना है। जैसे इसके सामने लिख देना है ये ट्रांसपेरेंट है ना? इसके सामने लिख देना है ये ओपेक है। और डेफिनेशन लिख लिए तो और अच्छी बात है, ये ट्रांसलूसेंट है। डेफिनेशन लिख लिए तब तो और अच्छी बात है। बाकी आपको ये अपने कॉपी में बनाने हैं, ठीक है? टाइम हो गया। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Have a nice day. सर होमवर्क क्या है?